ایک پاکستانی کمانڈو کی سرگزشت، پاک فوج کا جوان، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا ایک جنگجو کی آپ بیتی، بھارتی ایجنسیوں کو ناکوں چنے چبانے والا گوریلا، ایک ایسا بازیگر جسے خوف چھو کر بھی نہ گزرا، ریاض عاقب کوہلر کے قلم سے نکلی ایک لازوال کہانی۔ سرخ رنگ کی ڈبل ڈور درمیانی رفتار سے چودھری اکبر کے مکان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جاگیردار ڈرائیو کر رہا تھا اور اس کے ساتھ شمع گل بیٹھا ہوا تھا۔ میں اور امجد چہروں پر ڈھاٹے لپیٹے گاڑی کے کیبن میں بیٹھے تھے، جبکہ عقبی حصے میں بھی 2 ملازم سوار تھے۔ ان کے ساتھ روٹیوں کا چھابا اور 3 دیگچے بھی پڑے ہوئے تھے۔ چھابے پر بڑی سی چادر پڑی ہوئی تھی تاکہ روٹیاں گرد آلود نہ ہوں۔ تینوں دیگچوں میں نمکین، میٹھے چاول اور دمبے کا روسٹ گوشت موجود تھا، اور یہی مینیو آج شادی والے گھر میں مہمانوں کو پیش کیا جانا تھا۔ گزشتہ رات ہم اکٹھے بیٹھ کر اس منصوبے پر تفصیلاً بحث کر چکے تھے، اس لیے ہر آدمی کو اپنا کام ازبر تھا۔ گاڑی چودھری کی حویلی کے سامنے رک گئی۔ فرنٹ سیٹ پر جاگیردار کے ساتھ بیٹھے ہوئے شمع گل نے گاڑی سے باہر آ کر گیٹ کھٹکھٹانے کے لیے قدم بڑھائے، مگر اس سے پہلے دروازے کی چھوٹی کھڑکی کھلی اور ایک پہلوان نما شخص برآمد ہوا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے پہچان لیا، یہ وہی موصوف تھا کہ جس وقت سب سے پہلے چودھری اکبر سے میری ہاتھا پائی ہوئی تھی تو یہ اس کے ساتھ موجود تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور پہلوان بھی اس وقت چودھری کے ساتھ تھا، اور ان دونوں کو میں نے مار مار کر لمبا کر دیا تھا، اور اسی خدشے سے کہ ان کا سامنا نہ ہو جائے میں نے اور امجد نے اپنے چہروں کے گرد کپڑے لپیٹے ہوئے تھے۔ پروگرام کے مطابق شمع گل اس سے مستفسر ہوا، گھر میں کتنے آدمی موجود ہو؟ ہم کھانا لے کر آئے ہیں۔ پہلوان نے حیرانی سے پوچھا، کہاں سے؟ وہ بولا، امجد خان کے گھر سے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ جو لوگ بارات میں کسی مجبوری کے باعث شرکت نہیں کر سکے ہیں ان کے گھروں تک کھانا پہنچایا جائے۔ اب جلدی سے بتاؤ کہ یہاں کتنے افراد ہیں، ہم نے اور جگہوں پر بھی جانا ہے۔ وہ بولا، یہاں تو ہم 2 آدمی موجود ہیں۔ شمع خان نے پوچھا، دوسرا کدھر ہے؟ اس کے اچانک سوال پہ پہلوان بے ساختہ بولا، وہ پچھلے مورچے میں کھڑا ہے۔ شمع خان بولا، اچھا آپ برتن لے آئیں، لیکن خیال رہے میٹھے چاول، نمکین چاول اور روسٹ کے لیے علیحدہ علیحدہ برتن لانے ہیں۔ پہلوان سر ہلاتے ہوئے واپس مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ 3 مختلف برتن اور روٹیوں کے چھابے کے ساتھ لوٹ آیا۔ گاڑی میں پیچھے بیٹھے ہوئے دونوں ملازموں نے جلدی جلدی اس کے برتن چاولوں اور روسٹ وغیرہ سے بھر دیے۔ شمع گل ان دونوں ملازموں سے بولا، یہ کھانا بھائی صاحب کے ساتھ گھر کے اندر تک چھوڑاؤ، کیونکہ تمام برتن اکیلے لے جانا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور چونکہ یہ سب کچھ پہلے سے طے تھا اس لیے وہ بغیر کسی حجت کے جی اچھا کہہ کر گاڑی سے اترے اور پہلوان کے ساتھ چل پڑے۔ پہلوان رسمن بھی انکار نہ کر سکا۔ ان کی حویلی میں داخل ہوتے ہی ہم دونوں پھرتی سے گاڑی سے باہر آئے اور جاگیردار کی سمت الوداعی ہاتھ ہلا کر دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ دروازے کے اندر گھس کر ہم نے سامنے نگاہ دوڑائی۔ پہلوان ہمیں ایک چھوٹے سے کمرے کی طرف بڑھتا دکھائی دیا جو لازماً ان کا کچن تھا۔ اگر ہم دوڑ کر اصل عمارت میں چھپنے کی کوشش کرتے تب بھی عمارت تک نہیں پہنچ سکتے تھے، کیونکہ پہلوان کچن کے دروازے تک پہنچنے والا تھا، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ دوڑنے سے ہمارے پاؤں سے ہونے والی آہٹ سن کر وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا اور ہمارا سارا پلان فیل ہو جاتا اور ہمارے چھپنے کے لیے کوئی گنجائش بھی باقی نہ رہتی۔ ہم بجلی کی سی سرعت سے ایک فیصلے پر پہنچے اور گیٹ کے سامنے موجود چھوٹے سے کمرے میں گھس گئے۔ یہ کمرہ چوکیدار کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن عام کمرے کے برعکس یہ اونچا تھا۔ اس کے 2 پورشن اوپر نیچے بنائے گئے تھے، گویا اندر سے یہ 2 منزلہ تھے۔ اوپر والے پورشن پر چڑھنے کے لیے لکڑی کی ایک سیڑھی لگائی گئی تھی۔ نیچے ایک چارپائی پڑی تھی جس پر کھجور کے پتوں سے بنی ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی اور ایک میلی سی چادر بھی پڑی ہوئی تھی۔ اس مختصر سے کمرے میں ہمیں کوئی ایسی جگہ نظر نہ آئی جہاں ہم کمرے میں گھسنے والے کسی شخص کی نگاہ سے چھپ سکتے۔ اوپر والا پورشن بھی اس لحاظ سے موزوں نہیں تھا۔ کمرے میں گھسنے والے نے لازماً ڈیوٹی کے لیے اوپر چڑھنا تھا۔ لے دے کے دروازے کے کواڑ تھے جن کے پیچھے خود کو چھپانے کی کوشش کی جا سکتی تھی، مگر وہ کوشش بھی اس صورت میں کامیاب ہوتی کہ کمرے میں داخل ہونے والا بغیر دائیں بائیں غور کیے دوسری منزل پر چڑھ جاتا۔ اگر چارپائی کے اوپر ایسی چادر بچھی ہوتی جس کی وجہ سے کمرے میں داخل ہونے والے کو اس کے نیچے چھپا ہوا بندہ نظر نہ آ سکتا تو وہ ایک بہترین جگہ تھی، لیکن بدقسمتی سے اس کے اوپر چٹائی بچھی تھی اور اس کے نیچے چھپنے والا بغیر کسی تردد کے نظر آ سکتا تھا۔
میں نے दरवाजे की दर्ज से झांका। जानान खान के दोनों मुलाजिम पहलवान से अलविदाई मुसाफा करके रुखसत हो रहे थे। उनके दरवाजे से बाहर निकलने तक पहलवान सहन में खड़ा रहा। उसके बाद यकीनी तौर पर उसने अपनी ड्यूटी पर पहुंचना था। गो उस पर काबू पाना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं था, मगर इस सूरत में हमारा प्लान फेल हो जाता और चौधरी अपने मुलाजिमों की गैर मौजूदगी से बिदक भी सकता था। लेकिन उस दिन शायद हमारी किस्मत उरूज पर थी कि जैसे ही गाड़ी के स्टार्ट होकर चलने की आवाज आई, पहलवान ने गेट में मौजूद खिड़की की कुंडी अंदर से लगाई और इमारत के पिछवाड़े की जानिब चल पड़ा। वो जैसे ही मेरी नजरों से ओझल हुआ, मैंने आहिस्तगी से दरवाजे के किवाड़ खोलकर बाहर झांका। वो हवेली की पुश्त की जानिब मुड़ता दिखाई दिया। मेरे अंदाजे में वो अपने साथी को खाने की इत्तला देने जा रहा था। ये चंद लम्हे हमारे लिए गनीमत थे, वरना बाद में हम चूहे की तरह उस कमरे में फंस जाते। उसके इमारत के पीछे गायब होते ही मैंने तेज लहजे में कहा, अमजद चलो, और हम दोनों तेजी से अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़े। हमारी हद्दुल वसा कोशिश यही थी कि हमारे पाँव की आवाज न निकले, और हम अपनी इस कोशिश में कामयाब भी रहे। हम अंदरूनी इमारत के करीब पहुंचने वाले थे कि मेरे कानों में पहलवान की आवाज आई, जो साथी को खाने के लिए बुला रहा था। उसने शायद मोर्चे के ऊपर चढ़ने की जहमत गवारा नहीं की थी, क्योंकि उसकी जोरदार आवाज हमारे कानों तक पहुंच रही थी। हवेली का तर्ज तामीर मकामी था। छोटा सा बरामदा उबूर करके हम अंदर दाखिल हुए। एक मुख्तसर सी गैलरी थी जिसके दोनों जानिब और सामने की तरफ कमरों के दरवाजे नजर आ रहे थे। मुझे पता था कि उनके सामने वाले कमरों के साथ मुल्हक और भी बहुत सारे कमरे मौजूद होंगे, क्योंकि मकामी लोग कमरा दर कमरा तामीर के आदी थे। इसकी वजह शायद उस सर्दी की शिद्दत को कम करना हो जो उस इलाके में रिकॉर्ड पड़ती है। अमजद ने बरामदे के मेन दरवाजे के किवाड़ बंद कर दिए। बोला, उस मनहूस का कमरा कौन सा लगता है? मैंने कहा, जो कमरा सबसे ज्यादा पुरतायुश और सजा हुआ होगा वही उसका होगा। आखिर चौधरी है। मैं जेब से पेंसिल टॉर्च निकाल कर आगे बढ़ गया। गो जिस वक्त हम अंदर दाखिल हुए थे उस वक्त अभी तक सूरज गुरूब नहीं हुआ था, मगर इमारत के अंदर रोशनी का कोई खातिर खा बंदोबस्त नहीं किया गया था, इसलिए घुप अंधेरा छाया हुआ था। बरामदे के मेन दरवाजे के साथ खिड़कियां मौजूद थीं जो बंद थीं। उनको खोलने से गैलरी में खातिर खा रोशनी फैल सकती थी, मगर हम इस किस्म का कोई खतरा मोल नहीं ले सकते थे। थोड़ी देर अंदरूनी इमारत में घूमने के बाद ही हमने चौधरी की ख्वाबगाह तलाश कर ली थी। लकड़ी का जहाजी साइज बेड और फर्श पर बिछा हुआ ईरानी कालीन देखते ही हमें यकीन हो गया कि यही चौधरी की ख्वाबगाह थी। वहाँ छुपने के लिए सबसे बेहतरीन जगह बेड था। हम उसके नीचे घुसकर आराम से लेट गए। अमजद नीचे लेटते ही बोला, यहाँ तक तो डन हो गया, अब आगे क्या करना है? मैंने कहा, माजे, इस कुत्ते के साथ जितने बंदे मौजूद हों ये रहमान खेल के हैं और मेरे घर को जलाने में ये भी बराबर के शरीक हैं। चौधरी को गिरफ्तार करने के बाद इनमें से एक भी बचना नहीं चाहिए। वो बोला, मेरा ख्याल है एक आधी पहरा देता होगा, बाकी सो जाते होंगे, क्योंकि चौधरी को यहाँ किसी से खतरा नहीं। मैंने कहा, कोई बात हतमी तौर पर नहीं कही जा सकती, हो सकता है तमाम सो जाते हों, ये भी मुमकिन है 3-4 आदमी बैक वक्त जागते हों। अमजद ने कहा, एक दफा चौधरी पर काबू पा लें फिर देखा जाएगा, और हम दोनों ने खामोशी साध ली। वक्त थम सा गया था। सेकंडों वाली सुई की हरकत भी उतनी सुस्त हो गई थी, गोया कोई चीज उसे हरकत से रोक रही हो। मेरा दिमाग उस वक्त अजीबोगरीब ख्यालात की आमाजगाह बना हुआ था। वो वक्त करीब आ गया था जिसका मैं काफी अरसे से मुंतजिर था। अपने प्यारों की सूरतें मेरी निगाहों में घूमने लगी। सादिया, अदनान, अम्मी, अब्बू, हाकिम, अहमद, मोहम्मद जान, भाभी, भतीजे, तमाम के हंसते मुस्कुराते चेहरे मेरी आंखों में पानी भरते गए। मैं उनमें किसी को भी चौधरी के जुल्म से नहीं बचा सका था, लेकिन चौधरी को इबरतनाक अंजाम से दो चार करके मैं अपने दुखते हुए जख्मों पर मरहम रख सकता था। हमें इस बेड के नीचे बहुत सा वक्त गुजारना पड़ा। वो रात मेरी जिंदगी की तवील तरीन रात थी, और फिर खुदा खुदा करके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। चौधरी के कमरे से बाहर हमें बहुत से बंदों की मिली जुली आवाजें सुनाई दी। हमने बेसाख्ता छूकर एक दूसरे के जागने को यकीनी बनाया। दरवाजा खुला और चौधरी की मनहूस आवाज मेरे कानों में पड़ी, शादी खान, करम शाह को बोलो जनरेटर जल्दी ऑन करे। एक दूसरे बंदे की आवाज आई, जी चौधरी साहब। मगर उसके जाने से पहले जनरेटर स्टार्ट होने की हल्की सी गड़गड़ाहट सुनाई दी और कमरे में ट्यूबलाइट की दूधिया रोशनी फैल गई। चारपाई के नीचे से मुझे चौधरी के जूते नजर आ रहे थे। वो आहिस्ता कदमों से चलता हुआ आया और चारपाई पर बैठ गया। उसकी आवाज आई, तुम लोग आराम करो, सुबह जंगल खेल माल लेकर जाना है। शादी खान, करम शाह और मीर अली तीनों सुबह सवेरे निकल जाना, मुझे जगाने की जरूरत नहीं। शादी खान ने पूछा, कितना माल लेकर जाएं? वो बोला, उनकी डिमांड कितनी थी? शादी खान बोला, 10 किलो। चौधरी ने कहा, 15 किलो ले जाना, शायद ज्यादा जरूरत पड़ जाए। इस मर्तबा भी शादी खान बोला, ठीक है चौधरी साहब। वो कोई मुंशी टाइप चीज था। उसने बोला, और कुछ?
चौधरी बोला, नहीं शुक्रिया, आप लोग आराम करो। और तमाम बंदे सलाम कहते हुए चौधरी के कमरे से निकल गए। उनके जाने के बाद चंद लम्हे चौधरी अपनी जगह पर बैठा रहा और फिर उठकर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके बाथरूम में घुस गया। इस दौरान हम चुपचाप खामोशी से लेटे रहे। यूं भी इस किस्म की सिचुएशन में हम बगैर बोले एक दूसरे के इरादे को समझ लेते। बाथरूम से बाहर आकर वो बेड के नजदीक आया और झुककर कोई चीज उठाने लगा और फिर हल्की सी खनखनाहट सुनकर मैंने अंदाजा लगाया कि वो चाबियां थीं। चाबियां उठाकर वो मुड़ा। उसके कदम मुझे बेड की पाइंती की तरफ बढ़ते नजर आए। मैंने बेड के नीचे से सर निकाल कर देखा। वो दीवार के साथ लटकी एक बड़ी सी तस्वीर को उतार कर नीचे रख रहा था। तस्वीर के पीछे एक सेफ का दरवाजा नजर आ रहा था। उसी तरह का सेफ मैंने बुकिंग क्लर्क शाकिर के घर भी देखा था, जो बाद में मेरे हाथों मारा गया। मैं चारपाई के नीचे से निकल आया। अमजद ने भी मेरी तकलीद की थी। चौधरी सेफ का दरवाजा खोलकर उसमें मुनहमिक हो गया। मैंने आहिस्ता से पुकारा, चौधरी। वो बिदक कर मुड़ा, तुम उमर? उसकी आंखें हैरत और खौफ के मिले जुले तासुरात से फैल गई थी। मैंने कहा, बड़ी तेज यादाश्त है चौधरी तेरी। मैं तो समझ रहा था कि तू मुझे भूल गया होगा। उसने होंठों पर जबान फेरते हुए चोर नजरों से दरवाजे की जानिब देखा, मगर उसके देखने से पहले अमजद आहिस्ता कदमों से दरवाजे की तरफ चल पड़ा। वो अच्छी तरह जानता था कि उसने क्या करना है। चौधरी ने सेफ की तरफ इशारा किया, उमर जान, मैं तेरे साथ सौदा करना चाहता हूँ। ये पैसे ले लो। इसके अलावा मेरे अकाउंट में काफी रकम मौजूद है, तमाम तुम्हारे हवाले कर दूंगा। मैंने कहा, चौधरी रकम तो नहीं, अलबत्ता दूसरी शर्त पर सौदा हो सकता है। वो हक लाया, कौन सी? मुझे तुम्हारी तमाम शराइत मंजूर हैं। मैंने कहा, बड़ी आसान सी शर्त है, मेरे घर वाले वापस कर दो। वो बोला, उमर जान, कोई मुमकिन शर्त बताओ। मैं सर्द लहजे में बोला, बता दूंगा। और दूसरे लम्हे मेरा बायां मुक्का पूरी कुव्वत से उसकी कनपटी पे लगा। वो उछलकर सेफ के दरवाजे से टकराते हुए नीचे गिर पड़ा। उसके मुंह से एक बुलंद कराह खारिज हुई, मगर उसके बाद वो बेहिस्सो हरकत हो गया। मैंने अमजद से कहा, माजे, इसे बांधने के लिए कोई रस्सी देखो। मैं उसके मुतालिक कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था, हालांकि मुझे उम्मीद थी कि वो घंटे 2 घंटे के लिए बेहोश हो गया होगा। वो अपनी क्लैशनकोफ से स्लिंग निकालने लगा। स्लिंग से बांध लेते हैं। मैंने कहा, नहीं, बिस्तर की चादर से पट्टियां फाड़ो। और वो सर हिलाता हुआ बेड की तरफ बढ़ गया। बेड की चादर से उसने खंजर की मदद से 2 पट्टियां लंबाई के रुख में फाड़ी और उनसे चौधरी के हाथ पांव मजबूती से बांध दिए। मैंने चादर से मजीद एक पट्टी फाड़ कर अमजद की जानिब बढ़ाई। इसके मुंह पर भी पट्टी बांध दो। उसने सर हिलाते हुए पट्टी लेकर उसके मुंह पर बांध दी। मैंने कहा, तुम इसका ख्याल रखो, मैं जरा बाहर वाले सुरमाओं से निमट लूं। उसने नफी में सर हिलाया, नहीं, ये इधर महफूज है, दोनों चलते हैं। तेरा अकेला जाना मुनासिब नहीं, अलबत्ता इसे बेड के नीचे छुपा देते हैं। उसने चौधरी को बेड के नीचे घुसेड़ दिया। एक लम्हे के लिए सोचकर मैं इस बात में सर हिलाते हुए कमरे के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कुंडी खोलकर मैंने आहिस्ता से बाहर झांका। कोई भी नजर नहीं आया। दूसरे कमरे को उबूर करके हम गैलरी में आ गए थे। गैलरी खाली पड़ी थी और उसमें एक ट्यूब लाइट जल रही थी। बरामदे वाला दरवाजा और खिड़कियां बंद थी, इसलिए हमारे बाहर से देखे जाने का खतरा मौजूद नहीं था। अलबत्ता गैलरी के साथ मौजूद कमरों से कोई बाहर झांकता तो हम आसानी से नजर आ जाते। अमजद धीमी आवाज में मुस्तफसिर हुआ, पहले कमरे या बाहर? मैंने कहा, तुम कमरे संभालो, मैं बाहर जाता हूँ। वो बोला, इससे बेहतर ये होगा कि तुम बरामदे के दरवाजे के साथ छुपकर मुझे प्रोटेक्शन मुहैया करो और मैं कोशिश करता हूँ कि बगैर शोर शराबे के इन्हें मुर्दार कर दूं। लेकिन इसके बरक्स होने की सूरत में तुम अंदर बाहर दोनों साइडों को बाआसानी कवर कर लोगे। मुझे उसकी तजवीज मुनासिब लगी और मैं असबात में सर हिलाते हुए बरामदे के दरवाजे की जानिब बढ़ गया। दरवाजे के साथ मैं इस तरह छुप कर खड़ा हो गया कि अंदर बाहर दोनों तरफ नजर डाल सकूं। अमजद ने मेरी पोजीशन देखकर इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिलाया और दबे कदमों नजदीकी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे पर आहिस्ता से दबाव डालकर उसने मेरी जानिब दरवाजे के बंद होने का इशारा किया और दस्तक देने की इजाजत मांगी। मैं उस बात में सर हिलाने ही वाला था कि बिजली किसी सूरत से एक सोच मेरे दिमाग में उभरी और मैंने इशारे से उसे रोककर उसकी जानिब कदम बढ़ाए। वो भी मेरी तरफ चल पड़ा। क्या बात है? मैंने कहा, अंदर से कुछ पूछा गया तो तुम्हारे लिए पश्तो में जवाब देना मुश्किल होगा, इसलिए तुम मेरी जगह चले जाओ और ये काम मुझ पे छोड़ दो। अमजद सर हिलाता हुआ बरामदे वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके पोजीशन में होते ही मैंने दरवाजे को हल्के से खटखटाया। चल दे लका। क्या बात है लड़के? कमरे में मौजूद आदमी ने चारपाई से उठने की जहमत गवारा नहीं की थी। पश्तो में आलका लड़के को कहते हैं, मगर अक्सर लोग इसे बतौर तकिया कलाम भी इस्तेमाल करते हैं और ऐसे आदमी बाज दफा तो अपने से बड़ी उम्र वाले को भी लड़का कह देते हैं। उस वक्त भी कमरे में मौजूद आदमी ने उसी मानी में मुझे लड़का कहा था। वर्खों को लाव के दरवाजा तो खोलो। मैंने अपनी आवाज पहलवान की तरह भारी और करख्त बनाने की कोशिश की, लेकिन उसमें मुझे कोई खास कामयाबी न हुई। खुशकिस्मती से अंदर मौजूद आदमी बगैर मेरी आवाज पर तवज्जो दिए किसी और से मुखातिब हुआ। आला का नूर ताज, वर को लाओ के।
ओए लड़के नूरताज, उठो, दरवाजा खोलो। इसका मतलब है कमरे में कम से कम 2 आदमी तो लाजिमन मौजूद हैं। मेरे दिमाग में सोच उभरी, मगर मजीद कुछ सोचने से पहले दरवाजे के अंदरूनी जानिब पाँव की आहट उभरी और मैं हमतन गोश दरवाजे की जानिब मुतवज्जे हो गया। कुंडी खुलने की आवाज सुनते ही मैं दरवाजे के सामने से हट गया ताकि दरवाजा खुलते ही उसकी नजर मुझ पर न पड़े, और मेरी तदबीर कारगर रही। दरवाजा खोलने वाले को जब कोई सामने नजर न आया तो वो बड़बड़ाते हुए बाहर निकला। मैं उसके इस्तकबाल के लिए तैयार था। क्लैशनकोफ मैंने दीवार के साथ खड़ी कर दी थी क्योंकि मैं चाहता था कि हद्दुल वसा फायर की नौबत न आए। वो करीबन मेरा हम उम्र ही था। मुझे देखकर उसका मुंह हैरत से खुल गया, मगर चील की तरह उस पे झपटते हुए मैंने एक हाथ उसके मुंह पर इस तरह रखा कि उसकी आवाज उसके गले में ही घुट गई। दूसरा बाजू उसके गले में डालते हुए मैंने भरपूर झटका दिया और खटक की आवाज से उसका मनका टूट गया। उसके तड़पते जिस्म को आहिस्ता से जमीन पर लिटाकर मैं तेजी से कमरे में घुस गया। अंदर हल्की पावर का बल्ब रोशन था। इस रोशनी में एक बंदा हल्की चादर ओढ़े चारपाई पर लेटा नजर आया। दूसरे चारपाई खाली पड़ी थी। उस पे सोने वाला हमेशा के लिए सो गया था। मैंने सोने वाले की चादर खींच के उतारी। वो गड़बड़ाते हुए उठ बैठा। क्या है? मैंने कहा, बात यह है मिस्टर के उमर जान गंडापुर वल्द हाशिम जान गंडापुर अपना बदला लेने पहुंच गया है। उसे सफर आखिरत पर रवाना करने से पहले मैंने उसे अपना तारुफ करवाना जरूरी समझा। उससे कोई बात न बन पड़ी। उमर तुम्हें यहाँ? मगर मेरे पास उससे डायलॉग बाजी का टाइम नहीं था और उसकी गर्दन तोड़ते हुए उसे भी मैंने साथी के पास पहुंचा दिया। गैलरी में पड़े बंदे को अंदर घसीट कर मैं दरवाजे को बंद करके बाहर निकल आया। दीवार के साथ खड़ी क्लैशनकोफ उठाकर मैंने अमजद को 2 उंगलियां खड़ी करके बता दिया कि कमरे में सिर्फ 2 आदमी थे। अगला दरवाजा मुझे खुला हुआ मिला। किवाड़ को आहिस्ता से धकेलते हुए मैंने अंदर झांका, मगर अंदर घुप अंधेरा था। जेब से पेंसिल टॉर्च निकाल कर जलाई तो उसकी बारीक रोशनी में मुझे कमरा खाली नजर आया। उसके बाद वाला कमरा भी मुझे खाली मिला। उस कमरे के अंदर 2 मजीद अंदरूनी कमरे बने हुए थे। अंदरूनी कमरे में चारपाइयों पर बिस्तर तो बिछे हुए थे, मगर सोने वाला कोई नहीं था। अब गैलरी की इस लाइन में आखिरी कमरा रह गया था। अलबत्ता मुखालिफ समत के कमरे में अब तक नहीं देख सका था। आखिरी कमरे में झांकने पर भी मुझे खाली कमरा ही नजर आया। अलबत्ता उस कमरे के साथ मौजूद अंदरूनी कमरे में मुझे बंद दरवाजे की दर्जों से रोशनी निकलती हुई नजर आई। मैं दबे कदमों उस जानिब बढ़ गया। दरवाजे की खुली दर्जों से झांकने पर अंदर 4 आदमी ताश के पत्ते पकड़े खामोशी से उसमें मुनहमिक नजर आए। उनके अंदाज से मुझे पता चल गया कि वो जुआ खेल रहे हैं, वरना गपशप की गेम में उनके दरमियान हुल्लड़बाजी मची होती। मैंने दरवाजे पर आहिस्ता से दबाव डाला और ये महसूस करते ही कि दरवाजा खुला है, मैं एक झटके से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। इस खामोश माहौल में दरवाजा खुलने की आवाज किसी धमाके से कम न थी। चारों ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। कौन हो तुम? सवाल पूछने वाले की आवाज से मैं पहचान गया कि वो शादी खान था। मैंने कहा, नहीं पहचाना। इस मर्तबा करम शाह पहलवान बोला, तुम उमर जान हो ना? मैंने कहा, सही पहचाना। मैं ही वो बदनसीब उमर जान हूँ जिसे तुम लोगों के जुल्म ने कहीं का न रखा। वो बोला, मगर हमने क्या किया है? तेरी दुश्मनी तो चौधरी साहब के साथ थी, हम तो उसके मुलाजिम हैं। मेरे लहजे में उबलते हुए गम और गुस्से की शिद्दत ने पहलवान को लर्जा दिया था। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि मेरे पास तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारने का टाइम नहीं है। बहरहाल तुम्हारी किस्मत। ये कहते ही मैंने सेफ्टी लीवर को ब्रेस्ट पर सेट करके ट्रिगर प्रेस कर दिया। तड़तड़ की आवाज में उनकी करबनाक चीखें गूंजी और वो माही बेआब की तरह तड़पने लगे। मैं चंद लम्हे वहीं पे खड़ा उनके तड़पने का नजारा करता रहा। उन्हें मारते हुए मुझे अजीब सी तस्कीन महसूस हुई। यूं लगा जैसे किसी सख्ती से मुतालिबा करने वाले कर्ज खा को मैंने उसके कर्ज की अदायगी कर दी हो। मेरी महवियत फायरिंग की आवाज से टूटी। मैं जल्दी से बाहर निकला। मेरे अंदाजे के मुताबिक फायर करने वाला अमजद था। बाहर निकलने पर उसकी तस्दीक भी हो गई। मैं जैसे ही उसके करीब पहुंचा वो आहिस्ता से बोला, जानू साहब 2 थे। मैंने कहा, 6 को मैंने भी जहन्नम का टिकट पकड़ा दिया है। वो बोला, मेरा ख्याल है ये इतने ही थे, मगर एहतियातन मैं सहन में चक्कर लगाता हूँ, तुम बकाया कमरे देख लो। अमजद ने मशवरा दिया और मैं सर हिलाते हुए अंदर की जानिब बढ़ गया, जबकि अमजद का रुख सहन की तरफ था। थोड़ी देर बाद हम दोनों चौधरी के बेडरूम में इकट्ठे हो गए थे। अमजद का ख्याल दुरुस्त निकला था कि चौधरी के अलावा इस घर में कोई नहीं बचा था। जाने से पहले बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।